Means we have seen IPO cycle, how IPO cycle work. You have seen already your IPO cycle how work. User give input to the data to computers, and that will processed as a output, that is also information, and that is stored on a hard drive. Already you have seen. Then we have already seen each and every topic related to this IPO cycle and computer system. That was data, information, process. Means what is data, what is information, and what is process. So let's see. You have already seen data. I have told you what is word, numbers, spatial character, sound, and images. Then later on we learned about information, how data is processed into meaningful and useful. Then that is called information. Then process, that is the computer's job, we have seen, and how we collect some data and process it as information. And then finally we save our data in document or JPG file. We have seen it earlier, yesterday we have seen. Then we started software and hardware and user. What is software, what is hardware, and what is user. Then we seen some benefit. Yesterday we discussed some benefit of computer, and end of that day I have given some assignment also. So I am requesting to all the students, please upload your assignment on this group with writing these all the assignments in a fair copy, and click a photo and upload on the group. So it was your assignment, and I will expect all of the students who are available in this site, they will upload their assignments. So it was my assignment. Then you have to show 2 tasks that involve IPO cycle, and you have to name some application software and how to save file with that application software extension. And your third assignment was you have to write 5 benefit of computer. आपको 5 बेनिफिट कंप्यूटर के लिखने थे और उसे अपलोड करना था. इट वॉज yesterday class. So let's see today's class. Let's see today's classes. हम उसी से आगे शुरू करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से शुरू करेंगे. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर्स मीन्स उसके बेनिफिट. इट मे बी बेनिफिट, इट मे बी सम फीचर्स we are using in our daily life. So speed is the major feature of computer. Means it's very useful to do calculation. Means calculation में हम speed को determine करते हैं, decide करते हैं कि हम कोई भी calculation कितनी fast तरीके से कर सकते हैं. Human body cannot do calculation as fast as computer. So it's very important. Speed is a main characteristics of computer system. Not only in calculation, in searching anything on internet or web, or designing anything. Many workshops are there. Due to that, we increased productivity also. In this feature, another feature is there in computer characteristics of computer, increased productivity. Once our speed is more than human body, then our productivity increase definitely will increase. So more product may be generated. Second is quality. Once we are using manual things, our quality may be not good. It may be good sometimes, but it may be not good every time. So but when we use computer, we always designed high quality graphics and images. आप लोगों ने देखा भी होगा, पोस्टर्स जगह जगह लगे होते हैं. उनकी क्वालिटी, वीडियो आप देखते होंगे, HD क्वालिटीज़ के वीडियो होते हैं, SD क्वालिटी होती है.
उसके पहले अल्ट्रा क्वालिटी और ऐसे बहुत से क्वालिटी में हम जाएंगे तो ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल जाएंगे जो कंप्यूटर के डिजाइनिंग क्वालिटी के बारे में हमें बता सकते हैं। तो अभी हम इतना देखते हैं कि क्वालिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके थ्रू हम इमेजेस, ग्राफिक्स, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर्स जो होते हैं इसी के थ्रू डिजाइन हो सकते हैं। रिलायबिलिटी, नेक्स्ट फीचर इज रिलायबिलिटी। मीन्स कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर क्या करता है, कभी गलती नहीं करता है और बहुत ही रिलायबल होता है। रिलायबल मीन्स हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। एंड वंस वी असाइंड एनी टास्क it will not disappoint us, and that's why it is called reliable, and it will do accurate task. Whatever task we decided for it, it will do accurate task. And as I told earlier, it never makes mistakes. That comes in reliability category of current computer system reliability. Next is storage capacity. As you have seen, not only in computer, while in your smartphone also you have a large number of storage. It may be GB. Nowadays it comes in a TB, terabyte, megabyte, terabyte. So many songs, 200, 500 songs are available. So many movies are also we can store in mobile phones to see sometimes. So that is only due to storage capacity, and that is the main characteristics of computer system, storage capacity. Enormous amount of data we can store in our computer system. Next is versatility. Versatility means if a human is demanded to do a single task so many times, then they will be fed up definitely. किसी पर्सन को अगर मैं आप लोग को मैं कोई अगर टास्क देता हूँ कि आप ये टास्क करिए, तो वंस यू विल वेरी हैप्पी टू डू दैट टास्क, सेकेंड टाइम्स यू विल डू द सेम टास्क बट लिटिल बिट इंटरेस्ट, and when I will say you to do that task 100 times, then definitely you will be fed up. And that is the difference between human and a computer. Computer will never fed up, and it will do the repetitive task efficiently. जैसा कि फर्स्ट टाइम इफ़िशिएंटली होकर करेगा, उतना ही वो 100th टाइम में भी इफ़िशिएंटली होकर उस टास्क को कर सकता है. दैट इज वर्सेटैलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो उसका रिजल्ट सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इनपुट दें और उसका रिजल्ट हर बार डिफरेंट हो जाए. दैट इज इनकंसिस्टेंसी. सो कंप्यूटर में ऐसा कभी नहीं होता. कंप्यूटर इज वेरी कंसिस्टेंट. अगर हम जो भी इनपुट देते हैं उसका रिजल्ट सेम होता है, चाहे पहली बार हो चाहे 100th टाइम हो. सो दैट इज़ द फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंसिस्टेंसी. इट विल कंसिस्टेंट फॉर एनी इनपुट. जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा उसका. फॉर डिफरेंट इनपुट रिजल्ट विल बी डिफरेंट ऑल्सो. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. नाउअडे इट्स वेरी पॉपुलर अमंग अस. कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कंप्यूटर सिस्टम्स को आज घर घर में हम देख सकते हैं. मीन्स वायरलेसली वी कैन टॉक, वी कैन चैट, वी कैन डू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आवर डेली टास्क ड्यू टू ओनली कम्युनिकेशन. मैं आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जैसा मैंने बताया था, अगर हमारी स्पीड अगर अधिक होगी तो हम डेफिनेटली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकेंगे. और मैनुअल जॉब को एलिमिनेट करते हैं हम लोग. जब पहले लोग काम करते थे और उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर से अगर टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम जल्दी भी करते हैं. दैट विल बी स्पीड. और नंबर ऑफ टास्क मीन्स हमारे नंबर ऑफ टास्क भी बढ़ जाते हैं. द अमाउंट ऑफ टास्क विल बी डेफिनेटली इंक्रीज्ड. So that is increased productivity, another feature. So let's see another next feature, decision making. While using computer, sometimes we are unable to make decisions. In this case, we have some features in computers that makes decision. While application softwares and some specific purpose software like finance, weather forecasting, geographical locations, that will be very crucial of computer system to use decision making. Decision making is very important feature. Next is faster communication.
once speed will be high, productivity will be increased, then definitely our communication will be faster. And that is a type of email. Not only email, any types of message we want to send from one person to another person, that will be faster, like ordinary traditional ways like postal mail, courier services. इट विल बी डेफिनेटली फास्टर. किसी तरह के अगर हमको फास्टर कम्युनिकेशन करना है तो हमें कंप्यूटर यूज करना ही होगा. विदाउट यूजिंग कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, आवर कम्युनिकेशन नेवर विल बी नेवर फास्ट. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन बहुत शेयर करते हैं. आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. दिस इज़ ओनली ड्यू टू कंप्यूटर. कंप्यूटर के थ्रू फेसबुक में हम अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं. इंटरनेट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. दैट इज ओनली ड्यू टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग. एंड लास्ट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली. इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के यूज करने से हम पेपर को यूज होने से बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं. नंबर ऑफ़ यूज्ड पेपर शुड बी रिड्यूस्ड. डिजिटल मीडियम में हम नंबर ऑफ़ पेपर को यूज होने से बचाते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वायरमेंट फ्रेंडली. और ऐसे क्या होता है, पेड़ कम कटते हैं, और पेड़ कम कटने से हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है. सो these are the characteristics of computer. Students, if you have any query, any problem, you will write at the final of the that video. After the completion of that video, you can write your own things which you have not understand. So come to the next feature. Next feature is what you can do with computer. computer के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं. तो जैसा आप लोग पहले ही पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, हम लोग वी कैन लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज़, क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर टीचिंग एंड स्टडिंग. पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. किसी को कुछ समझाना हो, हम वीडियो बना के समझा सकते हैं. अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के टाइम में इट्स वेरी बेनिफिशियल. कंप्यूटर का यूज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है. कंप्यूटर एंड मोबाइल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर. हम आगे कुछ वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि कैसे मोबाइल इज़ अ पार्ट ऑफ वीडियो कंप्यूटर सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं. सो लेट्स सी राइट नाउ. इसके अलावा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में DVD प्लेयर होता है, डिजिटल कैमरेज होते हैं, स्टूडियोज होती है. मतलब अगर हमने म्यूजिक के लिए स्पीकर्स को ऐड करके रखा है तो हमारे सामने स्टूडियो का भी ऑप्शंस आ जाते हैं, कैमरा भी आते हैं. DVD प्लेयर के थ्रू हम कोई भी DVD उसमें लगा के प्ले कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. नाउअडेज अब तो पेन ड्राइव लोग लगाते हैं, DVD प्लेयर का बहुत कम ही स्कोप रह गया है, बट स्टिल वी आर यूजिंग. नाउ कम टू द कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर. दैट इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज. दैट इज कॉल्ड IPO. अभी क्लास 7th में मैं वीडियो बना रहा था, उसमें IPO साइकिल मैंने बताया था. इफ़ एनी वन हैव क्लास 7th वीडियो, देन यू कैन सी हाउ IPO साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर. तो अभी हम लोग डिवाइस पढ़ेंगे IPO साइकिल्स के. तो इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड और माउस स्कैनर हो सकते हैं कंप्यूटर में. प्रोसेसिंग के लिए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी बहुत से पार्ट हैं, आगे वीडियो में कभी ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा आपको. आउटपुट के लिए हम लोग मॉनिटर यूज कर सकते हैं, प्रिंटर यूज कर सकते हैं जो हार्ड कॉपी निकालता है, और स्पीकर यूज कर सकते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, या कोई वीडियो देख रहे हैं उसके ऑडियो को सुनने के लिए. और स्टोर कर सकते हैं हम हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकते हैं. अब आते हैं कैसे हम हार्डवेयर को मेंटेन करते हैं. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने हार्डवेयर को मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हैं जिससे स्ट्रेस कम हो. सो लेट्स सी. टेकिंग गुड केयर ऑफ़ कंडीशन, इट विल टेक केयर ऑफ़ यू. एक बुक में आपके लिखा हुआ है कि अगर आप कंप्यूटर की देखभाल करते हैं तो कंप्यूटर आपकी देखभाल निश्चित करता है. कीपिंग योर कंप्यूटर फिजिकली क्लीन. अपने कंप्यूटर को आप फिजिकली क्लीन कर सकते हैं.
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डस्ट। कंप्यूटर में डस्ट होता है जिससे कंप्यूटर के अंदर का टेम्परेचर डेंजरस लेवल पर पहुंच सकता है। उससे आपके हार्ड डिस्क के जलने या कंप्यूटर में कोई चिपसेट है जिसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेज हो सकते हैं। इसी तरह मॉनिटर पे डस्ट होता है वो आपके आई स्ट्रेन को बढ़ाता है। अब आते हैं अनदर टॉपिक इज ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर क्या होता है? एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम उन लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, डिजाइन करते हैं और ऑपरेट करते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं और कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। समटाइम्स यूजर फेस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ समय होता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यूजर को, एंड इन्हीं से बचने के लिए जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमन वेयर। अब आते हैं एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन वेयर तो उन लोगों के बारे में था जो डिजाइन, ऑपरेट और प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को। अब एर्गोनॉमिक्स क्या है? वो स्टडी है जिसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं, उन लोगों के बारे में। दे फंक्शन इन रिलेशन टू वर्किंग इन्वायरमेंट। दे फंक्शन, वो कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करते हैं कि कैसे हम अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को हेल्दी बना सकते हैं। फर्निशिंग एंड मशीन, दे यूज द मेन गोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज टू इनकॉर्पोरेट कंफर्ट। अभी इसमें लिखा हुआ है कि हमारा मेन एम क्या है एर्गोनॉमिक्स का, कि कंफर्ट देना, जो यूजर है उसको कंफर्ट मिले, आसानी से वो देख सके, लंबे समय तक काम कर सके, सेफली इन्वायरमेंट में वो अपने प्रोग्राम कर सके। तो इसके लिए हम कीबोर्ड को डिजाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर के डेस्क को हम सही तरीके से रख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। मॉनिटर के प्लेसमेंट को हम सही कर सकते हैं। रिस्ट स्ट्रेन को हम कम कर सकते हैं। रिस्ट स्ट्रेन मतलब हमारा ये जो हाथ होता है इसमें प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड चलाते समय, तो इसको हम सही कर सकते हैं। और हमारे बैठने का जो पोजीशन है कंप्यूटर पे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चेयर की पोजीशन सीधी होनी चाहिए। तो ये सब कारण हैं, रीजन हैं ह्यूमन वेयर के देखभाल के लिए। और इसी प्रिंसिपल, अब एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हम अपने वर्किंग एरिया में कुछ मैक्सिमाइज करते हैं कंफर्ट लेवल को, सेफ्टी को, एंड ये क्या करता है? इट विल रिड्यूस आवर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को ये रिड्यूस करता है, और उसमें मेन हेडेक, रिस्ट पेन और विजन प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टुडेज़ वीडियो, एंड ऑफ द टुडेज़ वीडियो। ये आज आपका वीडियो था और इसको ध्यान से देखिएगा। और आज आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। यू हैव टू राइट at least 5 way of वर्किंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे बैठ के आप जो काम करते हैं उनके 5 तरीके। पहला। दूसरा है इन योर डेली लाइफ, in your daily life, how computer characteristics will affect you। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कॉपी में करने हैं, और कॉपी में करने के बाद से आपको मुझे दिखाने हैं, इसी ग्रुप में आपको अपलोड करके दिखाने हैं। एक बार फिर देख लीजिए। राइट एटलीस्ट 5 वे ऑफ वर्किंग ऑन PC, एंड सेकेंड इज इन योर डेली लाइफ हाउ कंप्यूटर characteristics will affect you। These are the 2 questions. Thank you, students.